First of all, we will discuss about Lord Macaulay. His full name is Thomas Babington Macaulay. Very few students know about his full name. So, Lord Macaulay full name is Thomas Babington Macaulay. He was a politician, historian and essayist. He also known as the architect of India's modern education system under British rule. Lord Macaulay landed in India on 10 June. Landed in India 10 June 1834 and was immediately appointed president of the General Committee. The pleas of both the parties were submitted to him for opinion. He, however, declined to take any active part in the proceedings of the committee till the question at issue was finally decided by government. It was be borne in mind that Macaulay was not asked to define a complete education policy for the whole country, but was merely asked in his capacity as the law member to give his legal opinion on how a limited sum of 10 lakh of rupees could best be utilized for educational purposes and whether the education clause of the Charter Act of 1813 prohibited the use of the grant for any. As I discussed before and say the name of Charter Act 1813. In Charter Act 1813, Section 43, he want to stated that in Charter Act 1813, Section 43, the language means is not only the meaning is Persian, Arabic and Sanskrit, but also English language is also included in this section. Because Lord Macaulay advocated the superiority of Western knowledge, so he famously stated that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. Means, एक single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. मतलब भारत और अरेबिया के पूर्ण साहित्य यूरोपियन लाइब्रेरी की एक सेल्फ से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि यूरोपियन लाइब्रेरी की एक सेल्फ इतनी अच्छा साहित्य है वहां उसका इतना आपके पूरे भारत और पूरे अरेबिया का नहीं है, क्योंकि लॉर्ड मेकाले बहुत अच्छा पॉलिटिशियन था और उसे हिस्ट्री का बहुत अच्छा ज्ञान था, नियमों का बहुत ज्ञान था। तो मेकाले ने, क्योंकि मेकाले स्टार्टिंग डेज में किसी पॉलिसी किसी एक्ट के निर्धारण के लिए नहीं आया था कि वो किसी एजुकेशन पॉलिसी पर काम करेगा, नहीं, बल्कि वो एज अ लॉ सजेशन के लिए था कि वो सजेस्ट कर सकता है। लेकिन उसे जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया और जो उस समय पर चार्टर एक्ट 1813 के तहत एनुअली जो 1 लाख रुपया खर्च करने की बात थी, उसे कैसे यूरोपियन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस पर कैसे खर्च किया जाए, जबकि तो विवाद यहाँ पर जो था वो मेन था एंग्लोसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इस लाइन को भी देख लेते हैं। ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन लिबरल प्रोग्रेस एंड यूरोपियन ट्रेडिशंस विच वाइल डिसमिसिंग इंडियन एंड अरेबिक ट्रेनिंग एज इंफीरियर। कहते हैं ना, किसी को अगर नीचे गिराना हो, कमजोर करना हो, तो उसमें की खामियां बताना शुरू कर दो, व्यक्ति अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इसने भी वही किया इस एक कोट से कि यूरोपियन लिटरेचर और यूरोपियन लिटरेचर इतना अच्छा है जो कि आपके पूरे भारतीय और अरेबिया का भी लिटरेचर इतना अच्छा नहीं होगा। अब क्योंकि लॉर्ड मेकाले जो है तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया एंड प्रमोटिंग वेस्टर्न नॉलेज, क्लोजिंग ओरिएंटल स्टडीज एंड शेपिंग कॉलोनियल एजुकेशन। तो उस समय की एजुकेशन अभी भी देखिए, आप देखेंगे तो जितने भी मिशनरीज स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो सब इसी के तहत आज भी चल रहे हैं। अब इसमें बात करें तो ये ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थॉमस
Babington Macaulay introduced this document 2 February 1835. Macaulay's vision was to create a class of Indians who could act as intermediaries between the British rulers and the Indian masses. He aimed to develop individuals who would be Indian in blood. ये बहुत famous quote है, very famous quote stated here. Indian in blood and color, but English in taste, opinions, morals and intellect. यानी कि देखने में भारतीय लगे लेकिन टेस्ट और ओपिनियन मॉरल इंटेलेक्ट से इंग्लिश हो. Macaulay dismissed the worth of traditional Indian learning and claiming that European knowledge, especially in science and social thought, was way above. In this article, we are going to cover Lord Macaulay Minute, its historical background, features, and objective. Now, next slide. Historical background of Lord Macaulay Minute. In the beginning, the British East India Company showed little interest in education, focusing solely on trade and profit, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था कि हम व्यापार करेंगे, मुनाफा कमाएंगे. उनका लीस्ट इंटरेस्ट था एजुकेशन पे. लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ओवर द पीरियड दे रियलाइज्ड दैट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि मजा आता था भाई व्यापार में मुनाफा इतना हो तो क्यों ना कुछ दिन रहकर व्यापार किया जाए. और कुछ दिन रहकर व्यापार करने में इन्हें इतना मजा आने लगा कि फिर सोचा कि कुछ ज्यादा ही रहा जाए. तो जब कुछ ज्यादा ही रहा जाए तो फिर कोशिश की कि हम इन्हें कैसे तोड़े. कल्चर से नहीं तोड़ सकते, भाषा से नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो फिर कमियां बताना शुरू करते हैं. और कमियां बताते बताते इतनी कमियां बताई कि हीन दीन स्थिति साहित्य की कर दी गई. तब इन्होंने बोला कि दे रियलाइज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड बिगिन सेटिंग अप लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन. अब इन्होंने शिक्षा में भी हमला करना शुरू कर दिया, अपने पैर पसारने एक कहते हैं कि शुरू कर दिए. अब कहते हैं कि अर्ली एफर्ट्स प्रमोटेड इंडियन क्लासिकल लर्निंग लैंग्वेजेस सच एज संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, द कोर्ट लैंग्वेज एट दैट टाइम. उस समय में ये लैंग्वेज यूज होती थी, संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन. लेकिन अब इन्होंने, क्योंकि मेकाले ने आते ही कहा था कि चार्टर एक्ट 1813 में जो सेक्शन है 43, उसमें लैंग्वेज का मतलब सिर्फ अरेबियन, पर्शियन और संस्कृत नहीं है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का भी मतलब है, इंग्लिश लैंग्वेज भी. इसीलिए इसी एक्ट के बाद से जब बेंटिंग ने इसको लागू कर दिया, तब हमारे जो कोर्ट की लैंग्वेज थी उसमें इंग्लिश को भी तरजीह दी जाने लगी थी. वो नेक्स्ट बात करेंगे. तो द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 was the first concrete step allocating 1 lakh annually for education. However, missionary efforts largely focused on religious and moral instructions aiming to Christianize Indians. क्योंकि सीधा है, जब तक हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे. तो इन्होंने मिशनरी एफर्ट्स कुछ करने शुरू किए, जिससे इनका जो एमिंग था टू क्रिश्चियनाइज इंडियंस. अब जो डिबेट था, इमर्ज था, वो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट था. अब ओरिएंटलिस्ट वो थे जो सपोर्ट करते थे ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग इन नेटिव लैंग्वेजेस, ठीक है. और एंग्लिसिस्ट थे हु एडवोकेटेड फॉर इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न साइंसेस, जो वेस्टर्न साइंसेस और इंग्लिश एजुकेशन को तरजीह देते थे. अब मुद्दा था यही. अब इन्होंने दोनों को भिड़ाया. अब इसमें क्या है, टू रिजॉल्व दिस मेकाले अराइव्ड इन इंडिया इन 1834 एज द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन GCPI. हिज मिनट फाइनली टाइटल द बैलेंस इन फेवर ऑफ द एंग्लिसिस्ट एंग्लो. तो उसने फेवर ही किया, क्योंकि वो चाहता ही था कि इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न साइंसेस को फोकस किया जाए, इसीलिए फेवर था एंग्लिसिस्ट के. मेकाले मिनट का जो फीचर्स थे वो 4 फीचर्स थे मेनली. फर्स्ट था कि एजुकेशन फंड शुड बी यूज्ड एक्सक्लूसिव फॉर प्रमोटिंग यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस इन इंग्लिश. कि सिर्फ हमारा जो एजुकेशन के फंड्स हैं, जो 1 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए यूरोपियन लिटरेचर, साइंस और इंग्लिश पर ही खर्च किया जाए. और स्टाइपेंड की जो बात की इन्होंने स्टूडेंट्स के, वो स्टाइपेंड भी खत्म कर दिया जाए जो नए रजिस्ट्रेशन होंगे, बल्कि जो पुराने इंस्टीट्यूशन है उन्हें स्टाइपेंड दिया जाए, बाकी को. बट नो न्यू ग्रांट वुड बी प्रोवाइडेड फॉर ओरिएंटल स्टडीज, इन्होंने साफ कह दिया.
नो गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रिंटिंग ओरिएंटल वर्क, जितने भी इंडियन लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेजेस के काम है उनका प्रिंटिंग सपोर्ट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, ये तो छपना ही बंद हो गया फिर। नेक्स्ट था कि ऑल रिसोर्सेज वर टू बी डाइवर्टेड टुवर्ड इंग्लिश एजुकेशन विद द बिलीफ दैट इट वुड बी सर्व एज गेटवे टू मॉडर्न नॉलेज। जो भी साहित्य संस्कृति जो विज्ञान तकनीकी है वो यूरोपियन, जो सफलता का जो रास्ता है वो यूरोपियन लिटरेचर साइंस से होकर गुजरता है, ना कि अरेबिक एंड इंडियन ओशन से, इंडियन एंड अरेबिक लिटरेचर से। तो क्योंकि उन्होंने अलमारी की जो तुलना करी थी भारतीय और अरेबिक, तो जो दो भाग थे ओरिएंटलिस्ट और एंग्लोसिस्ट में, उसमें ओरिएंटलिस्ट काफी खिन्न हो गए थे इनकी इन बातों से, बहुत परेशान हो गए थे, और समुदाय में कुछ तनाव सा भी आ गया था, क्योंकि ना तो मेकाले ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त था भारतीय साहित्य अरेबिक साहित्य के बारे में, और उसे सिर्फ इतना पता था कि मुझे हमेशा इंग्लिश और यूरोपियन को ज्यादा वैल्यू करना है। नेक्स्ट चलते हैं, लॉर्ड मेकाले मिनट्स ऑब्जेक्टिव। तो देखा, हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसका सीधा था कि फंड्स शुड बी स्पेंड ऑन वेस्टर्न साइंसेस, तो इसीलिए इसने प्रायोरिटाइज किया वेस्टर्न एजुकेशन को। क्लोजर ऑफ ओरिएंटल कॉलेजेस, जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे, ईस्टर्न फिलोसफी थी, क्लासिक्स थे, वो सब डिसकंटिन्यू कर दिए गए, और एक नई थ्योरी को डेवलप किया, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी का मतलब था यहाँ पर कि ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एलीट वुड बी एजुकेटेड हु इन टर्न वर एक्सपेक्टेड टू स्प्रेड नॉलेज टू द मासेस। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है कल्चरल एसिमिलेशन, मीन्स की क्रिएटिंग अ लॉयल क्लास ऑफ इंडियंस अलाइंड विद ब्रिटिश वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, कि हम ऐसे इंडियंस को अलाइन करें जो वैल्यू एंड इंटरेस्ट से ब्रिटिश हो और दिखने में इंडियंस हो। अब बात करते हैं बेंटिंग रेजोल्यूशन 1835, क्योंकि विलियम बेंटिंग जो थे उस समय के लॉर्ड जनरल, गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे उस समय के, जब ये रिपोर्ट सबमिट की 2 फरवरी 1835 को, 2 फरवरी 1835 को उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग को रिपोर्ट सबमिट की, और बेंटिंग ने सीरियसली इसको डिक्लेयर किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में 7 मार्च 1835 को। अब बात होती है, क्योंकि मेकाले पहले से जानता था कि मैं रिपोर्ट तो बना के दे सकता हूँ अपने अनुसार और सब चीजों का ध्यान रखे, क्योंकि वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी था, लेकिन इसको स्वीकार करना और लागू करना सब बेंटिंग के हाथ में है। तो रिपोर्ट को बनाया ही उस प्रकार से गया था जिसमें बेंटिंग हर प्रकार से सहमत हो सके, क्योंकि विलियम बेंटिंग भी चाहते थे कि यूरोपियन लैंग्वेज मींस इंग्लिश का प्रचार प्रसार हो। जो मेकाले ने बड़ी बड़ी बातें की थी वो भी सब बेंटिंग के अनुसार ही की थी, इसीलिए इस पॉलिसी को लागू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और इस पॉलिसी को एज इट इज अप्लाई कर दिया गया। अब जो बात कर रहे थे डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी की, तो डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी इसी एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस हुई मेकाले मिनट में ही 1835 में। थ्योरी सजेस्ट करती है कि प्रोवाइडिंग एजुकेशन ओनली टू अ अपर एलीट क्लास who would act as agent of knowledge, मतलब एजेंट बनाया अपर एलीट क्लास को, जिससे डिफ्यूजन फॉर द वाइडर पॉपुलेशन, अब वो ऊपर से नीचे की तरफ छन छन के शिक्षा वाइडर पॉपुलेशन यानी कि मास ग्रुप तक पहुंचे। ये थ्योरी जो है वो ट्रिकल डाउन है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाए, और प्रैक्टिस इट लेड टू सोशल एंड एजुकेशनल डिवाइड benefiting the upper classes while leaving the majority एजुकेटेड। अब फिल्टरेशन है तो भाई जरूरी नहीं है मास लेवल तक पहुंचे, अब क्योंकि चॉइस एलीट क्लास की है एजुकेशन को मास लेवल पर पहुंचाने की, तो एलीट क्लास ही मना कर दे मास लेवल पर पहुंचाने के लिए, इसीलिए ये थ्योरी को बाद में हटा दिया गया। वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि किसने हटाया डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी को।
अब जब बात करते हैं मेकाले मिनट के इमीडिएट इफेक्ट क्या हुए, तो जो डिक्लेरेशन की बात है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। अब मेकाले डिफाइंड द सेक्शन 43 of Charter Act 1813, and he defined it so cleverly and logically that Lord Bentinck, the then Governor General, agreed to it and declared the English medium and European knowledge and science oriented education policy. Next है इनका कि beginning of English system of education, क्योंकि इंट्रोड्यूस किया था तब with the declaration of this education policy, English medium schools and colleges of higher education were open, and so strong was this foundation laid that this education system progressed rapidly in our country. नेक्स्ट है इनका डिक्लेरेशन ऑफ इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि मेकाले ने पहले ही एक्ट में इंग्लिश लैंग्वेज को भी जोर शोर से बोला था। अब इसमें 1837 तक गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड डिक्लेयर्ड इंग्लिश टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ पर्सियन, and it was the result of Lord Macaulay logic given in the favor of English. Next day, English compulsory for government jobs. In 1944, Lord Hardinge, the Governor General, issued an order that at the time of appointment in government jobs, candidate possessing the knowledge of English will be given preferences. This preference became compulsory in practice. तो बहुत सारी बातें और भी हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन इन शॉर्ट और फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जाम्स एंड मैनी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस, it is very sufficient lecture for the B.Ed students, B.L.Ed students, D.L.Ed students, because Macaulay is a very famous topic. And if you have any suggestions, any suggestions and want to discuss about any topic, any educational topic, we can discuss after that. Please like and subscribe my channel and hit the bell icon, and please comment if you want to suggest me any regarding in this recording and topic. So thank you students.